યુવાનો 25 વર્ષથી નીચેના, મતલબ કે ભારત એ યુવાઓનો દેશ છે, પણ ભારતમાં 30% લોકો 30% યુવાનો બેરોજગાર છે અને એમાંથી પણ 30% લોકો માત્ર ને માત્ર ગેમ રમવામાં સમય વિતાવી રહ્યા છે. મીન્સ કે એ લોકો ગેમર્સ. આજે આપણે વાત કરવાની છે કે યુવાઓને બિઝનેસના માર્ગે આપણે કઈ રીતે લઈ જઈ શકીએ. ભારતમાં 97% એન્ટરપ્રાઇઝ એવા છે કે જે 10 વર્ષ પણ ટકતા નથી અને એમાંથી પણ જો ટકી જાય તો 90% એન્ટરપ્રાઇઝ છે એ માઇક્રો હોય છે. માઇક્રો એટલે એમની 20 વર્ષ પહેલા પણ 200 સ્ક્વેર ફૂટની દુકાન હતી અને આજે પણ એમની દુકાન 200 સ્ક્વેર ફૂટની જ છે. એક સર્વે દ્વારા એવું કહેવામાં આવે છે કે ભારત પૂરા વિશ્વમાં સેકન્ડ નંબરનું સ્ટાર્ટઅપ હબ છે, પણ એક સર્વે એવું બતાવે છે કે 90% સ્ટાર્ટઅપ 3 વર્ષ સુધી પણ ટકી શકતા નથી. કહેવામાં આવે છે કે ભારતમાં જેટલા પણ સ્ટાર્ટઅપ છે તેમાંથી 90% એ ઝીરોથી હીરો બનેલા છે. એક જનરેશન જેણે વ્યવસાય શરૂ કર્યો તે વ્યવસાય બીજા જનરેશન સુધી પહોંચતા 73% ફેલ થઈ જાય છે. તેમાંથી પણ 93% એન્ટરપ્રાઇઝ ત્રીજી પેઢી સુધી પહોંચતા પણ નથી. ડોક્ટર સી.કે. પ્રહલાદ કહે છે કે દેશમાં જેટલા બી પ્રોબ્લેમ છે એટલી જ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એવું સમજવામાં આવે તો દેશમાં જેટલા પ્રોબ્લેમ છે એટલી જ વ્યવસાયની તકો પણ રહેલી છે. અમે એવું વિચારી રહ્યા છીએ કે આજની યુવા પેઢી નોકરી માંગવાને બદલે નોકરી આપે, નોકરીના બદલે વ્યવસાય પર પસંદગી ઉતારે. ખરેખર આ દેશને નવા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ અને નવા બિઝનેસમેનોની બહુ જ જરૂર છે કે જેમની પાસે કંઈક નવા વિચારો છે, કંઈક નવા આઈડિયાઝ છે. આ સિરીઝમાં અમે એવા વ્યક્તિઓને આપણી સમક્ષ લઈને આવશું કે જે વ્યક્તિ ઝીરોથી હીરો સુધીની, ઝીરોથી વ્યવસાયની શરૂઆત કરી અને ખૂબ ઊંચી નામના અને ખૂબ મોટી સફળતા મેળવી છે. એમની સાથે અમે ચર્ચા કરીશું બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી વિશે, બિઝનેસ આઈડિયાઝ વિશે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વિશે, સ્ટાફ સિલેક્શન વિશે અને બીજી ઘણી બધી રોચક માહિતી વિશે. આ માધ્યમથી તમને સિક્રેટ ઓફ સક્સેસ મળશે. એમની ભૂલોમાંથી, એમના આઈડિયામાંથી તમે કંઈક નવું શીખી શકો છો અને તમારા વ્યવસાયને ફેલ થતો રોકી શકો છો. મિત્રો, એક સાચો બિઝનેસમેન એને જ કહેવાય કે જે બીજાની ભૂલોમાંથી, બીજાના અનુભવોમાંથી કંઈક શીખે અને ઝડપથી આગળ વધે. અને મિત્રો, ખરેખર અમે દિલથી કહીએ કે આ એપિસોડમાં તમે જે શીખશો એ તમને કદાચ કોઈ સ્કૂલ કે કોઈ કોલેજ પણ ક્યારેય શીખવી શકશે નહીં. અમારું એક જ મિશન છે કે આ દેશની યુવા પેઢીને બિઝનેસ માટે ઇન્સ્પાયર કરવા અને તેમની સફળતા માટેની ઉજ્જવળ તકો ઊભી કરવી. આ દેશમાં નવા એન્ટરપ્રિન્યોર્સને ઊભા કરવા. અમારી આ સફળતાના સુકાની સિરીઝને જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. नमस्कार दोस्तों, योगेश विरड़िया यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. जो हमारी सीरीज है सफलताना सुकानी, એનો છઠ્ઠો એપિસોડ આજે તમારી તરફ લઈ જવા જઈ રહ્યા છીએ. तो दोस्तों, कहते हैं ना, कामयाबी उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, जोश और जुनून, जिसके मुताबिक ही आपको लाइफ में सफलता मिल सकती है. तो आज के हमारे गेस्ट है संजय भाई पटियार, जो एक खुद नेटवर्कर रह चुके हैं और आज उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है. तो दोस्तों, संजय भाई, स्वागत है आपका. नमस्कार. नमस्कार. तो दोस्तों, हम संजय भाई से पूछना चाहेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि कैसे वो यहां से यहां तक पहुंचे, उनकी जर्नी कैसी रही इन बिटवीन, कैसे उनको सफलता हासिल हुई. तो दोस्तों, संजय भाई, आपका टूक में परिचय दीजिए हमारे दर्शक मित्रों को जो कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, कि आपका नाम क्या है और आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं. नमस्कार विरडिया सर, सब मित्रों को भी नमस्कार. मेरा नाम संजय पटियार है. मैं हाल अंकलेश्वर से बिलोंग करता हूँ और भरूच जिला लगता है. और मतलब ओके, ठीक है. ये लाइफ में पहला मेरा सर के साथ इंटरव्यू है, तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा. बराबर है. ओके ओके. नो. और सर, मतलब आगे जो भी है मेरा जैसे भी होगा मैं आपको बताते जाऊंगा जो भी अनुभव है.
ओके, श्योर। लोग कहते हैं कि यदि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके पास अच्छे से अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आपने सफर शुरू किया तो आपको कैसा लगा कि एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आपने कौन सा एजुकेशन लिया हुआ है? सर एजुकेशन तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एजुकेशन होगा तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। देखने जाए तो मैं खाली 10th पास हूँ, 10 पास किया है मैंने। उसके बाद में आगे ITI किया था और उसके बाद में धीरे 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 अनुभव लेते हुए स्टार्ट किया। अभी बहुत अच्छा है। ऐसा मतलब है नहीं कि अब हमको एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। जो नॉलेज मतलब बाहर से मिलता है ना, ऐसा नहीं कि हमको मतलब PhD तक करके जाना ही है तो ही हम सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात बताई संजय भाई ने। देखो दर्शक मित्रों, वो सिर्फ 10 तक पढ़े हुए हैं, फिर भी वो इतना अच्छा कंपनी को चला रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो संजय भाई, मैं आपसे पर्सनल ये क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि आपने 10वीं पास किया, ITI किया, तो आप बहुत सारे बिजनेस में या फिर जॉब में जा सकते थे, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री को ही क्यों चुना? नेटवर्क मार्केटिंग में ही क्यों आए आप? सर देखो, मैं इसके पहले है ना जॉब भी करता था, जॉब भी कर चुका हूँ। धीरे धीरे एक वर्कर से लेके ऑपरेटर में गया, ऑपरेटर से लेके सुपरवाइजर में गया, मतलब एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर लेवल तक गया। वहां पे क्या था सर, देखो कोई भी किसी को भी हम 5 रुपया अगर किसी का पेमेंट बढ़ाना है ना, वो नहीं बढ़ा सकते। या तो किसी नए कोई पर्सन को लाना है ना, तो हमारी मर्जी से हम नहीं ला सकते। लेकिन एक ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि हम किसी को भी अच्छी तरह से मदद भी कर सकते हैं, प्लस नए प्रोस्पेक्ट को हम ला सकते हैं और नया मतलब यहाँ से कैसे आगे जर्नी करना है वो हम सिखा सकते हैं। बाकी अब कंपनियों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया, क्योंकि देखो एक बार किसी को हम 500 रुपया 1000 रुपये से मदद कर सकते हैं, बार बार किसी को हम मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये नेटवर्क कंपनी ऐसी है कि नेटवर्क एक फील्ड ऐसी है, वहां से हम बार बार हर टाइम उनको मदद हमारी तरफ से हो सकती है। इसके लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बहुत अच्छी सोच है देखो संजय भाई की, कि वो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि आपके आसपास में कोई लोग ऐसे हैं कि उनको हेल्प की जरूरत है, तो आप एक बार 500,000 रुपए से उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पे आप जितने भी लोगों को हेल्प करना चाहते हो उतने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, उनको एक नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो बहुत अच्छी सोच के साथ संजय भाई ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज उनकी एक खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो संजय भाई, आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपनी को शुरू करने के बाद में? सर तकलीफें तो सब जगह पे होती है, क्योंकि कोई भी नया कुछ स्टार्ट करते हैं, नई जॉब में भी जाते हैं कहीं कंपनी में, तो भी हमको पता नहीं रहता, तकलीफें तो बहुत सारी आती है। अभी मतलब बहुत सारे मतलब पुराने लोग होते हैं, थोड़ा बहुत वो भी तकलीफें करते हैं। लेकिन देखो जिसको अगर स्टार्ट किया है और जिसको आगे लेके जाना है ना, उसको तकलीफ झेलना पड़ेगा। प्लस के देखो मार्केट में अभी बहुत सारी कंपनियां चल रही है, तो अकेली शेयर्स लाइफ चेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो क्या है अभी बाकी सब कंपनी, अभी हमारा छोटा नेटवर्क है, इसके लिए धीरे धीरे सब तकलीफों को झेलते झेलते हम आगे निकल रहे हैं और सब लोगों को समझा रहे हैं। इसमें क्या है, पेशेंस रखना पड़ता है। प्लस के हमारे पास एक प्रोडक्ट, एक सेलिंग फैन, टेबल फैन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी अच्छा खासा धीरे धीरे 35 प्रोडक्ट हम लेके आए हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह से हमको ये रिस्पॉन्स आगे का मिल रहा है, इसी तरह से हम आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। देखो, एक तकलीफें तो सबको आती है कि यदि आप लाइफ में कुछ ग्रो अप करना चाहते हो तो आपको तकलीफें तो आती ही रहेगी, लेकिन उन तकलीफों से आप लड़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। एक सीलिंग फैन, एक प्रोडक्ट से उन्होंने शुरुआत की, आज उनकी 35 प्रोडक्ट्स मार्केट में है और बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट सबको दे रही है और बहुत सारे लोग इन कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं। तो संजय भाई, आपका जब जॉब कर रहे थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कौन सी कंपनी में जॉब किया या फिर कौन सी कंपनी में इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थे और वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने पहले 2 कंपनियों में जॉब किया है सर। एक विशाल केमिकल करके एक कंपनी है
और दूसरा यूनाइटेड फॉस्फेट लिमिटेड यूपीएल 3 में मैंने जॉब किया है। इसमें मेरा 1200 रुपये सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था। 12 घंटे का 1200 रुपये सैलरी था और उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। तो धीरे 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 वहां भी मैंने ग्रोथ लेते गया। मेरे को मतलब पहले कोई अनुभव नहीं था, खाली आईटीआई किया था, इसके लिए कोई अनुभव नहीं था। मैं धीरे धीरे अनुभव लेते गया। फिर यूनाइटेड फॉस्फेट्स में गया, वहाँ लास्ट 32,000 सैलरी तक मैं गया था और वहां पे मैंने रिजाइन देके इस कंपनी को स्टार्ट किया। उसके साथ साथ मैंने सर नेटवर्क कंपनियां भी 3-4 नेटवर्क कंपनियां भी की है, वहां से भी बहुत सारा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। और इस कंपनी को स्टार्ट करने का मेन रीजन मेरा सर ऐसे पहले था नहीं कि हम कोई ऐसा कंपनी स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक कंपनी में मैं काम कर रहा था तो वहां पे क्या हुआ कि मैं 6 लाख मंथली पे आउट तक गया था। तो वहां पे क्या हो, कोई संजोगवशता कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज करने से वजह इन्वेस्टमेंट में चली गई और इन्वेस्टमेंट चलने जाने के वजह से वो कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई, उसके बाद में हमको ऐसा हुआ कि ऐसे ही सब कंपनियों में हम जा रहे हैं और सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी के साथ मतलब लोगों का माइंड भी इधर उधर हो रहा है और प्लस के लोगों का पैसा जा रहा है, हमको ऐसा लगा। तो अभी नेटवर्क, असल नेटवर्क क्या है, ऐसा हम लोगों ने, मैंने पुस्तक पढ़ी, वीडियोस देखे, सब लोगों के जो कंपनियां चला रहे हैं वो, तो फिर ऐसा लगा हमको कि सही में एक नेटवर्क कंपनी, नेटवर्क क्या है ना, वो सबको दिखाने के लिए एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे और सबको बताएंगे कि भाई 100 रुपया आज लगाने से 15 दिन में 200 रुपया नहीं होता है, कोई भी कंपनी में कहीं भी जगह नहीं होता है। ये सिखाने के लिए एक स्टार्ट किया और मतलब जहाँ जॉब करता था वहां भी मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा ही था, क्योंकि एक नॉर्मल वर्कर से लेके मैं एग्जीक्यूटिव रैंक तक उधर भी गया था और लास्ट वहां से मैंने, मेरे पास एक पूरा प्लांट में हैंडल करता था, वहां तक पहुंचा। मतलब सब जगह पे रिस्पॉन्स, मतलब कहने का मतलब ऐसा है, हम काम अच्छी तरह से करते जाएंगे तो रिस्पॉन्स सब जगह से मिलेगा। मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ लो या जॉब पकड़ लो, लेकिन कोई भी जगह पे हम टॉप पे कैसे पहुंचे और अच्छे से अच्छा बेनिफिट कैसे दे, वो हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। देखो यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स है वो स्टूडेंट भी है, कॉलेज करते स्टूडेंट्स भी है, बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। स्पेशली हमने इस सीरीज को क्यों लॉन्च किया है, तो इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, बिजनेसमैन को हेल्प हो सके और कुछ ना कुछ आइडियाज वो यहाँ से ले सके। तो यहाँ पे संजय भाई ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि आप कौन से भी फील्ड में हो, यदि आप काम अच्छा करते हो, खुद के साथ में अच्छा बिहेव करते हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेस तक पहुंच जाओगे। उन्होंने एक नॉर्मल लेवल से, एक वर्कर से जॉब की शुरुआत की थी और एक एग्जीक्यूटिव के लेवल तक वो पहुंच चुके थे। कैसे? तो उनके काम के वजह से। तो आपके पास एक अच्छा काम होना चाहिए और काम के साथ आपकी पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। संजय भाई, आपने बताया कि आपने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की और बहुत ही अच्छा आप कमा रहे थे। तो आपने कैसे सोचा कि मैं खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करूं और मैं लोगों को फायदा दूं? तो उसके पीछे का आपका रीजन क्या था, आपका क्या उद्देश्य था कि आपने खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की? सर वही नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने किया ना, देखो मैंने पैसा मैं कमाया हूं, लेकिन उसके साथ में लोगों का कितने का गया भी होगा। अभी ये न जाए। और अच्छी तरह नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मतलब पैसा लगाना और पैसा कमाना, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है और एक कस्टमर होता है। जो कस्टमर मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे प्रोडक्ट और उसको अच्छे दाम में और मार्केट में जो मिलता है वही दाम में इनको मिले, प्लस उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। और मतलब कोई ऐसा सीधा डायरेक्ट रास्ता नहीं था और हमको ऐसा लगा कि अगर हम सब चल रहा है उसके साथ में हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम मतलब डायरेक्ट कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट और अच्छा बेनिफिट उनको दे सकते हैं। और बीच में से जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको जो नेट बाकी जगह पे कैसे चलता है कि एक मैन्युफैक्चर होता है, उसके नीचे बहुत सारे एडवर्टाइज वाले होते हैं, सबको पैसा जाता है, तो वही पैसा हम हमारे फील्ड में देंगे। उस तरह से हमने स्टार्ट किया है और
बढ़िया तरीके से हमको रिस्पॉन्स मिलता है। अभी कंपनी में कम से कम 8,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं और गुड। बहुत अच्छा सा जा रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपने जॉब कर रहे थे एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे, लेकिन आपकी सोच लोगों से अलग थी कि मैं लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहता हूं। इस वजह से आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग श्रेयस लाइफ चेंजर प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। तो इस नाम के पीछे का अर्थ क्या है? आपने बहुत ही अच्छा नाम सिलेक्ट किया है, से यस। तो क्या रीजन, आपने क्या सोचा, किसने कुछ आइडियाज दिया था आपको, कि फिर आपने खुद से सोचा कि कैसे? नहीं सर, खुद से ही नाम सोचा था। मतलब से यस मतलब नाम में ही एक एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। एनर्जी। तो और क्या है, से यस मतलब हाँ बोलो, नेगेटिव होना नहीं चाहिए, भी पॉजिटिव, हाँ ही मतलब नेगेटिव रहना नहीं है। और उसी तरह से इस नाम में मैं और मेरा पार्टनर का नाम भी जुड़ता है। पहले तो उसी हिसाब से हमने से यस का मतलब संजय योगेंद्र ऐसा करके कंपनी का नाम सोचा था। फिर आगे जाके इसका मतलब पूरा वर्ड बना से यस, और उसी हिसाब से हम लोगों ने से यस नाम रखा। से यस लाइफ चेंजर्स, हाँ मतलब लाइफ चेंज करने के लिए हाँ बोलो, पॉजिटिव रहो और हमारे साथ चलो, ऐसा करके हमने कंपनी का नाम रखा था। बहुत बहुत अच्छी सोच रखी आपने कि ऑलवेज हर एक इंसान को लाइफ में पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। तो आपने बहुत सारे साल, कितने साल तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है? ऐसा देखने जाए तो सर, स्वदेशी पहले स्टार्ट किया था मैंने, जो यहाँ का कंपनी था। और स्वदेशी स्टार्ट किया ना, उसी टाइम से सर मतलब अपने देश का ही कोई कंपनी करे ऐसा मेरा पहले से रहा है। और स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करे ऐसा मैं इसमें ज्यादा मानता हूँ। जैसे कि पतंजलि का प्रोडक्ट में स्वदेशी के बाद यूज करता था। वैसे यस मतलब बराबर। अभी भी हमने जो ये शेयर स्टार्ट किया है ना, वो भी यही उद्देश्य से स्टार्ट किया है कि हमारे देश के जो छोटे छोटे उद्योग है, वहां से ही हम प्रोडक्ट बनवाएंगे और हमारे देश में सब जगह सेल पे करेंगे। पहुंचाएंगे। बाकी सब कंपनियों में हमने मतलब ये हिंदुस्तान की जो बाहर की कंपनियां हैं, उसको मैं ज्यादा इतना प्रोवाइड नहीं करता हूँ। और बने जब तक हमारा रहे तब तक हम स्वदेशी ही प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, इसके लिए। बहुत, तो आप अपने बहुत सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से एक नेटवर्कर में कौन सी 3 अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अच्छा नेटवर्कर बन सकता है? सर पहले तो एक क्वालिटी तो वही होनी चाहिए कि किसी को गुमराह न करे। यस। कोई भी जगह से किसी को गुमराह न करे कि रातों रात हम करोड़पति हो जाएंगे, या दिन भी दिन। मतलब अभी नेटवर्क मार्केटिंग में एक होना चाहिए कि मतलब किसी को भी गलत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग न दिखाए, वो पहली क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरा है कि जिसको भी हमारे साथ लाते हैं ना, उसके साथ कमिटमेंट एकदम 100% रखे। फिर आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, वो अच्छा नहीं रहता है। और वो क्वालिटी हर नेटवर्कर में होना चाहिए। तो सर ये अपना जो इतना बड़ा जो नेटवर्क होने जा रहा है 6,000 400,000 का, तो वो 1000 का, तो सर ये मतलब इसमें हम कहीं हमारा भी थोड़ा सा एक हिस्सा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि यदि सॉरी आप सर। सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके पास ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आपको लोगों को गुमराह नहीं कर। आपने कंपनी की शुरुआत की, तो आपने कब कंपनी की शुरुआत की और आज आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? सर मैंने कंपनी है ना, 13 मार्च 2019 को स्टार्ट किया। 13 मार्च दो किया था। 3 लोग मिलकर स्टार्ट किया था। और कंपनी को कम से 18 महीना होने वाला है। और हमारे साथ अभी 8,000 लोगों की टीम, 8,200 लोगों की टीम है।
और मतलब अच्छे अच्छे लीडर भी है अपने साथ। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से इस कंपनी की शुरुआत की। 8,000 से भी ज्यादा लोगों की आपके पास में टीम है। आपने अभी तक कितनी सिटीज में, कितने राज्यों में आपकी कंपनी काम कर रही है? सर अभी अपना 16-17 राज्य में काम हो रहा है अपना। और ज्यादा से ज्यादा हमारा महाराष्ट्र, सेलवास, आसाम, यूपी, अलीगढ़, यूपी अलीगढ़ में मतलब ज्यादा काम हो रहा है, और गुजरात। तो सर आप का शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैनों के साथ में डिस्कशन किया, तो वो कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं टाइम का प्रॉब्लम रहता है, मैं अच्छे से टाइम नहीं मैनेज कर पाता हूँ जी। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनका एक प्रॉब्लम होता है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। वो अच्छे से उनका टाइम मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना, आप कभी वापी में रहते हैं, तो कभी अहमदाबाद में रहते हैं, तो कभी सूरत में रहते हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? सर देखो, बहुत बहुत सही सवाल आपने किया है, क्योंकि 24 घंटे का आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। 24 24 घंटे अमिताभ बच्चन सर के पास भी है, मुकेश अंबानी सर के, सबके पास 24 घंटे है, बराबर है। लेकिन उसका मैनेज सर ऐसे करते हैं कि हफ्ते पहले उसका प्लानिंग कर लेते हैं, तो तकलीफ नहीं होती। मतलब कल क्या करना है तो हमको 7 दिन पहले से मालूम रहता है कि हमारा इस दिन ये प्लानिंग है। तो सर पहले तो लिख के रखना पड़ता है एक सीरियल पूरा, कि हर हफ्ते हमको क्या क्या करना है। और कल बराबर। क्या, बीच में कोई अलग से काम आ जाता है तो कोई पोस्टपोन करता है, बात अलग है। लेकिन हमारा प्लानिंग पूरा मतलब हफ्ते का होना चाहिए, तब मैं हम अच्छी तरह से मतलब टाइम मैनेज कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके पास, यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास पूरे प्लानिंग का शेड्यूलिंग होना चाहिए कि एक हफ्ते तक आपको क्या क्या करना है। करते। तो आपने इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां में काम किया, खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की, तो कोई ऐसी घटना है जो अभी तक आप भूले नहीं हो कि ये बहुत बुरी घटना मेरे साथ हुई थी, या फिर कोई अच्छी घटना मेरे साथ हुई थी? मेमोरेबल मोमेंट आप सबका अभी तक का। सर आगे एक नेटवर्क कंपनी काम कर रहा था, उसमें अभी अभी तक बुला नहीं हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ आपको। एक बार हम प्लानिंग करने के लिए निकले अक्कलकुआ साइड। तो जाने के टाइम पे हम मतलब पूरा 5-6 किलोमीटर ऊंचाई पे जा रहे थे, जो अक्कलकुआ मूवी वाला जो रास्ता है। जाने के टाइम पर चले गए, पूरा प्लानिंग किया अच्छी तरह से, मस्ती से आ रहे थे। आने के टाइम पर देखा ना सर, जाने के बाद ये साइड पे बारिश गिर गई थी। तो आने के टाइम पर कोई मतलब रास्ता ही नहीं था, पूरा रास्ता मतलब पानी से खत्म हो गया भर था। गया था। 3 लोग थे, हम 3 दोस्त थे। तीनों ने मिलके पत्थर से मतलब 3 घंटे तक मेहनत किया, 100 मीटर का रास्ता बनाया, और वहां से गाड़ी को धीरे धीरे निकाल के लाए। मतलब वो हमें अभी तक नहीं मैं बोल पाया हूँ। और अच्छी भी थी, मजा भी आ रहा था, क्योंकि नेटवर्क में ऐसा होता है, ऐसी तकलीफ ऐसी मतलब ऐसा है कि वो हम कभी भूल नहीं पाते। दूसरा के देखो सर, एक नेटवर्क इंडस्ट्रीज को हम जल्दी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज इतनी बढ़िया है, और इतनी मतलब अच्छी लगती है, जो मतलब बाकी जॉब से तो बढ़िया ही लगती है। और एक इंसान को मैं नहीं भूल पाऊंगा, जिसने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया है, जिसका नाम है संतोष सोराटे सर। अभी सेलवास में रहते हैं। बस उन्हों की एक बात से मैं मतलब इंस्पायर हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी छोड़ नहीं सकूंगा, ऐसा मेरे को उसी टाइम से लग गया है। मैं इनको अभी तक अभी मेरा गुरु ही मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि उनकी बात से मेरे को नेटवर्क लगा, और नेटवर्क में भी इतना आगे बढ़ गया। बाकी देखने जाए तो इतना कुछ था नहीं हमारे पास कि हम ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी डाल सके। साइकिल लाने का ठिकाना नहीं था, एक टाइम ऐसा था, उसी से मैं इधर तक पहुंचा हूँ। मतलब तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बढ़िया मेरे को ये ऐसा अनुभव रहा है, अच्छा भी है और बुरा हुआ, लेकिन इससे हम अच्छा निकाल के लाए।
बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बहुत सारी घटनाएं हमारे लाइफ में ऐसी बनती है एज अ बिजनेसमैन, एज अ नेटवर्कर, कि जो हमें लाइफ लॉन्ग तक याद रहती है। तो बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे और मैंने भी बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? पर जो टिक नहीं पाता है उसको सर धैर्य नहीं है पहले तो। क्योंकि मतलब इन लोगों को कैसा है, आज ही आम का पेड़ बोया, कल उनको कैरी चाहिए। तो सर वो लोग टिक नहीं पाते यार। नेटवर्क मार्केटिंग को सर मतलब जो भी बड़े बड़े जो पैसा कमा रहे हैं उनका कहना ऐसा है, कम से कम 1,000 दिन देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में 1,000 दिन देना पड़ता है, सीखना पड़ता है कैसे करना है और क्या क्या करना है वो सब देखना पड़ता है, नहीं तो अ, कर नहीं पाते सर। ऐसे लोग फिर क्या करते हैं कि अभी कुछ कोई कंपनी में जुड़े, 15 दिन या 15 महीना किया, उसके बाद में छोड़ देते हैं सर, क्योंकि धैर्य रखते नहीं है। और अगर धैर्य नहीं रखेंगे ना तो ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा किसी को नहीं मिलेगा। सब बोलते हैं आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो और आपको आता जाएगा, वो एकदम गलत बात है। कभी किसी को आया नहीं है और लाइफ में कभी किसी को आएगा नहीं सर। एक प्रोडक्ट बिल्ड भी ऐसा है जो मैं अभी आप देखने जाओ तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में कितने लीडर्स हैं जो महीने का 60-60 70-70 लाख रुपया कमा रहे हैं। मतलब तो फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को खराब बोलते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग खराब होती तो ये लोग इतना पैसा नहीं कमाते। बराबर है। मतलब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और धैर्य रखते नहीं है। मतलब 10 दिन एक कंपनी किया, फिर एक महीना दूसरी कंपनी किया, फिर कोई आया उसके साथ गए, 10-10 कंपनी साथ में करते हैं और बाद में बोलते हैं इस कंपनी में पैसा नहीं है, तो गलत है सर। बाकी नेटवर्क इंडस्ट्री से अच्छा कोई भी मतलब एक मिडिल क्लास के लिए कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो अच्छा पैसा अच्छा अर्न कर सके। बहुत अच्छी बात बताई कि लोग जो है वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी मार्केटिंग कंपनी के तरफ से। तो आपको यदि लाइफ में सक्सेसफुल चाहिए और एज अ नेटवर्कर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? तो आपको एक ही कंपनी में टिके रहना है और वहीं पे कंटिन्यूअस वर्कआउट करते रहना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी। हर रोज एक नई कंपनी के बारे में हमको मार्केट से पता चलता है कि आज ये नहीं आई है, आज ये नहीं आई है। तो वो कंपनी से आपकी कंपनी कैसे अलग है? सर मैं आगे आपको बताया ना उसी तरह से हम प्रोडक्ट बेस्ड एक कंपनी है, किसी का इन्वेस्टमेंट कराते नहीं है और मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलती है ना उससे थोड़ा सस्ता करके हम दे रहा है। रेट तो मतलब ये अलग से है इसमें। प्लस दूसरा अलग से ऐसा है कि यह सिंगल लेग आप कहीं भी काम करते हो, आपके नीचे कोई भी आदमी काम करता है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलता जाता है। मिलता है। हाँ, बाकी सब कंपनियों में कैसा होता है सर, देखो आपको तो एक बार मतलब एक जगह पे कुछ काम किया और दूसरी जगह दूसरा काम नहीं करोगे तो नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बहुत सारी कंपनी में है। तो हमारे यहाँ सिंगल लेग प्लान है, सबसे अलग है। और मतलब प्रोडक्ट भी हमारा इतना बढ़िया है कि सब यूज कर सकते हैं। और कोई रखने वाला प्रोडक्ट नहीं है कि आपको जाके थोप दिया जाएगा कि नहीं ये एक किट बनाया है आप ले लो। यहाँ से वो एक 55 रुपए की पेस्ट लेके भी आप हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। वैसा है कि एक 35 रुपए का पाउडर का डब्बा लेके भी आप बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। और सर अभी टाइम नहीं हुआ है ज्यादा, इसके लिए हम धीरे धीरे करके प्रोडक्ट भी ला रहे हैं। सर प्रोडक्ट में जो भी अच्छा प्रोडक्ट होगा और जो भी बढ़िया एकदम प्रोडक्ट होगा ना वो प्रोडक्ट हम लाएंगे और सबको सुटेबल होगा। और जो हमारे साथ जुड़े हैं सबका रिव्यू लेके उसके बाद में ही हम प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी तक 35 जितने प्रोडक्ट बना दिए हैं, तो आपके फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो या श्रेयस लाइफ चेंजर्स के भी होंगे, ताकि उनको भी पता चले इस इंटरव्यू के माध्यम से कि श्रेयस की आगे की प्लानिंग क्या है। सर अभी कॉस्मेटिक का भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जस्ट लॉन्च किया है।
और उसके आगे अभी ग्रीन टी और रेगुलेटरी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट महीने में हम मसाला, जो वो बाकी सब गरम मसाले रहते हैं, मिर्ची है, हल्दी है, गरम मसाला है, हिंग पाउडर है, ये सब लॉन्च करने अगले महीने में जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे करके प्रोडक्ट हम आगे, ये पूरे साल का हमारा टारगेट है कि 51 प्रोडक्ट हमको करना है दिसंबर तक, जैसा हमारा टारगेट। ओके, बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफ में एक गोल होना चाहिए कि यहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो आप एक नेटवर्कर से, खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, तो आपको आपका जो सक्सेस का श्रेय है आप वो किसको देना चाहोगे कि मैं आज यहाँ पे भी हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ? चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई गुरु है, मेंटर है, कोच है, या फिर आपकी फैमिली भी हो सकती है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर पहले तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज को मैं बहुत मतलब अपनी लाइफ में मानता हूँ के लिए, पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्रीज है उनको मैं इनका श्रेय देना चाहूंगा। दूसरा कि मेरी टीम में मतलब मेरे को छोटा कोई एक दिन भी काम करके गया है सेल्स में, उनको भी मैं इनका श्रेय देना चाहूंगा। और परिवार को इस तरह के, देखो सर, परिवार में से ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है सबको, कि कुछ भी करने जाओ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे परिवार ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मेरी वाइफ है, मेरी लड़का है, उनकी वाइफ है, मेरे लड़की की वाइफ है, मेरी सिस्टर है, सब लोगों ने मेरे को मतलब बहुत सारे, मेरी डॉटर है, सबने मेरे को बहुत सारा सहारा दिया। और दूसरा मेरे मतलब सलाहकार है जो भी जिन्हों विक्रम सर, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया है। मेरे पार्टनर्स योगेंद्र राजपूत सर, मतलब मेरे को कोई ना कोई मतलब जो भी सिखाया, जो भी अच्छा लगा मैं लिया हूँ। और विक्रम सर हर टाइम मेरे को कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, तो मेरे को मतलब ज्यादा सपोर्ट अभी विक्रम सर का भी बहुत है। और ये तो मैं सबको मेरा इस यहाँ तक पहुंचने का श्रेय देना चाहता हूँ। ओके, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके बहुत सारे मेंटर हैं, आपके फैमिली ने भी आपका बहुत सपोर्ट किया है। तो आपको कभी पुस्तकें पढ़ने का शौक है? आप किताबें कुछ पढ़ते हैं या फिर कुछ मूवीज वगैरह जो जहां से कुछ आइडियाज गेन कर सकते हो, ऐसा? हाँ सर, पुस्तक मैं पहले नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया ना, तब से मतलब जो भी बहुत सारे लोगों ने बोला फिर भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर जो बड़े बड़े लोगों का मैं वीडियो देखा, उसमें से पता चला कि सही सक्सेस का जो रास्ता है ना, पुस्तक से ही जाता है। तो फिर मैंने अभी पढ़ना चालू किया है। माइंड पावर का एक अभी स्टार्ट है, चालू चालू है। और उसके आगे तम, तुम्हारी जीत करके एक पुस्तक है शिव खेड़ा का, वो पढ़ा है। फिर बहुत सारे मतलब पुस्तक अभी तक मैं मतलब पहले क्या होता था कि 1 घंटा पढ़े ना तो पूरा नींद आ जाता था। अभी मतलब आदत हो गई है। हर दिन हर दिन सुबह में 5 बजे उठ के मतलब 1 घंटा पढ़ना ही है। उसके बाद में टाइम मिले तो बात अलग है, बाकी 1 घंटा तो स्पेशली बुक के लिए मैंने निकाला है। और मूवीज में सर मैं मूवी ज्यादा देखने नहीं जाता, लेकिन जो अभी सक्सेस जो जो भी आदमी अभी सक्सेस है उनका वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। ओके, तो सर आपने देखा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को किताबें आप पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज आप देखते हो, तो आज आपको कैसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू से आपने कुछ सीखा है, लेकिन आज आपके इंटरव्यू से बहुत सारे लोग सीखेंगे? मेरा सर पहला था इंटरव्यू, इसके लिए थोड़ी नर्वस रहेगी। नेक्स्ट से बहुत बढ़िया तरह से हम लोगों को बताएंगे, और कैसे सक्सेस होया जाता है मैं वो भी आप अच्छी तरह से बता पाऊंगा। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आपके जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबको लास्ट में आप एक मैसेज देना चाहोगे तो कौन सा मैसेज दोगे आप उनको? आपने अभी तक बहुत अच्छे मैसेज लोगों को दिया, बहुत अच्छी बात आपने लोगों को बताई। तो लास्ट में आप जितने भी नेटवर्कर्स है या फिर जो लोग युवा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं,
उनके लिए आप एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या मैसेज रहेगा? सर मैसेज में ये रहेगा कि अभी तक जितने जुड़े हुए नेटवर्क से लोग हैं उनको मेरा ऐसा मैसेज रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना उसको खराब न करे, मतलब उसको जो तरीके से मतलब प्रोवाइड करना चाहिए वही तरीके से करे, उसको खराब नहीं करे। और जो नए लोग अभी तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है और नए आते हैं उनको मेरा मैसेज ऐसा रहेगा कि पहले जांच करे, कोई भी जगह पे जुड़ने से पहले वो पूरी कंपनी और उसके बाद में ही के पूरी नेगेटिविटी आए और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में खराब बोलना स्टार्ट करे। और खराब बोलना वही स्टार्ट करते हैं जो मतलब पहले पहले स्टार्ट करते हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का मालूम नहीं रहता है और वो चालू करते हैं तो उस टाइम पे मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ पॉन्जी स्कीम चिपका देते हैं और उसमें जो थपाटा पड़ता है उसके बाद में उनके नेटवर्क मार्केटिंग को खराब बोलते हैं। तो मतलब पहले जांच इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है तो पूरा जांच करने के बाद ही इस कंपनी में मतलब कोई भी कंपनी में ज्वाइन हो। और मतलब फिर ज्वाइन होने के बाद कोई भी पॉन्जी स्कीम में ज्वाइन होने के बाद में हम इस इंडस्ट्री को गलत तरीके से गलत नाम देंगे तो अच्छा नहीं है। मतलब इससे अच्छा कोई मतलब मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा, तो इसको खराब ना करें, यही मैसेज रहेगा। बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप नई नई तरह की स्कीम देके लोगों को साथ में फ्रॉड मत कीजिए, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए, क्योंकि वही लोग आपको इन फ्यूचर में आगे लेके जा सकते हैं। तो संजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमारे इस दर्शकों को दिया और उनको कुछ नॉलेज शेयर किया। सो बहुत सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और इस सीरीज में हर गुरुवार को रात 9 बजे मैं नए नए बिजनेसमैनों को आपके सामने लाता रहूंगा, जहां से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो और अपनी आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार संजय भाई आपका। थैंक यू वेरी मच।